Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, increase us in knowledge. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine and enjoying good health. Okay, grade 3. This is our lecture number 4 and it is about verb. So in today's lecture, you will learn what a verb is and the forms of verbs. Okay, look at these sentences. We eat 3 times a day. The dog ran after me. Birds fly in the air. You speak too loudly. So, you have seen the underlined words eat, ran, fly, speak. All these words show some action. आपको ये सारे words action show कर रहे हैं ना? So the action words are called verbs. Is this clear? The action words are called verbs. Okay. So let's see in detail about the definition of verb. Verbs are the words that shows action, that is what a subject, person or thing does. ठीक है कि कोई भी बंदा या कोई भी चीज क्या कर रहा है. ठीक है. For example, Hina laughs, the clock strikes. या इसके अलावा what is done to a subject यानी किसी भी person के साथ या thing के साथ क्या होने जा रहा है. जैसे the driver is stopped कि driver को रोका जा रहा है. The window is broken. Okay, so is it clear कि verb जो से हैं वो आपके action को show करते हैं, बताते हैं कि कोई भी person या thing क्या करने जा रहा है या उसके साथ क्या होने जा रहा है. Okay. Okay, the next thing is that verb shows what a person or living thing says or express. ठीक है, ये भी बताते हैं कि कोई भी living thing या कोई भी person क्या कह रहा है या क्या express कर रहा है. For example, children were screaming, the girl was dancing in joy. Okay, fine. The third thing is shows, the verbs show state of being. What a subject is or has. ठीक है, verb आपको बताते हैं कि कोई भी subject की position क्या है या वो क्या करता है या क्या है. ठीक है. For example, the cat is dead. Okay, here the verb is telling you the status of cat कि वो किस तरह की है यानी मर चुकी है. Similarly, he is a writer. Okay, glass is brittle. Glass की quality क्या है कि वो brittle है. I feel sorry. ठीक है, यहाँ पे अब आपको feeling भी बताई जा रही है. Okay, so verbs जो उनसे हैं वो आपको किसी भी चीज की बताते हैं कि वो क्या है या क्या कर रहा है. Is that clear? Okay, let's come to the verb tense. ठीक है, अब this we have already discussed कि verb क्या होते हैं. Verbs are the action words. या verb क्या होता है, जो आप वो word जो आपको किसी भी action के बारे में बताता है. Fine. And what is tense? Tense actually tells you about the time. ठीक है. So आपका जो verb है इसकी जो changes होती हैं ये depend करती हैं कि आप कौन से time की बात कर रहे हो. ठीक है ना. So verb changes depend on what time you are referring to. जैसे एग्जाम्पल में आप देखें कि प्रेजेंट टेंस वर्ब्स जो उनसे हैं वो उन एक्शंस को रेफर करते हैं दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहे हैं. आई टॉक अ लॉट, मैं बहुत बातें करती हूँ. ठीक है, तो ये अभी हो रहा है. आई एम डूइंग दैट. Past tense verbs refer to actions that have already happened. ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो कि पहले से हो चुके हैं. That is, he talked to me yesterday. कल वो मुझसे बात कर रहा था. ठीक है, अभी ऐसा कोई इशू नहीं कि अभी वो बातचीत चल रही है. ये कल की बात है. Okay, the next is future tense verbs. ये रेफर करते हैं उन एक्शंस को जो कि अभी होने हैं. ठीक है, किसी भी वक्त यानी होंगे फ्यूचर में, आइंदा आने वाले दिनों में. That is, I will talk to my teacher tomorrow. यानी आपका इरादा ये है कि आप कल बात करेंगे. ठीक है, तो ये अभी की बात नहीं है. So is this clear कि verb जोन सा है that is an action और tense जोन सा है that is the time. और आपका verb change जोन सा है वो depend करता है time पे. और basically इसकी 3 phases होती हैं, present, past and future. Present tense में आप उस एक्शन की बात करते हो जो अभी हो रहा होता है, पास्ट में जो गुजर चुका, एंड फ्यूचर जो अभी आएगा. इज दैट क्लियर? ओके,
Fine. So what is good to know? All action verbs come from the base form of doing words. ठीक है, action verbs जितने भी हैं आपके, वो हमेशा आपकी एक बेस फॉर्म से आते हैं, जिसको हम वर्ब वन कहते हैं. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट टेंस वर्ब और रूट वर्ब और स्टेम वर्ब. ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, राइट, डू एंड प्ले, दीज आर द रूट verbs. ठीक है, ये रूट वर्ड्स हैं, इन्हीं से आगे आपकी सारी फॉर्म्स बनती हैं. So verb two या second form of the verb is the simple past tense, that is write के लिए wrote, do के लिए did और play के लिए played. ठीक है, verb की third form जो सी है, that is the past participle form, और ये भी आपकी root form से ही बनती है, जैसे write से written, do से done और play से played. Okay, fourth form of the verb is called present participle form, जिसमें हम ing ऐड करते हैं. ठीक है, किसी भी रूट फॉर्म के साथ, और उसमें डिपेंड करता है कि देयर आर सर्टेन चेंजेस. जैसे आप देखें कि राइट में WRITE राइट है, तो हम इसमें ing ऐड करते हुए ई को ओमिट कर देते हैं, लेकिन डू में हम कुछ भी ओमिट नहीं कर रहे, DOING डूइंग. सिमिलरली PLAY प्ले इसकी रूट फॉर्म है, और इसी में हम ing ऐड करेंगे तो ये इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, वो बन जाएगी. ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो सी है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं. बेसिकली ये आपके जो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब होते हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का भी नाम, उसमें ये रूट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड करने से बनती है. जैसे राइट, राइट्स, डू के आगे हमने ES ऐड किया तो डज बन गया. प्ले एंड PLAYS प्लेज. ओके, इज दिस क्लियर? So one thing you have to keep in mind, based on the formation of past and past participle form, verbs are divided into two forms. ठीक है, अब जो इनकी बेस है ना, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उस पे जब हम बेस करते हैं तो हम वर्ब को दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब्स जो से हैं, दे फॉलो अ फिक्स पैटर्न टू चेंज इट्स फॉर्म. जैसे हम किसी भी बेस फॉर्म के आगे DED IED ऐड कर देते हैं तो आपके रेगुलर, तो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, irregular verbs does not follow a fixed pattern to change its form. ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते. we cannot add fixed characters to follow their types. यानी इसमें हम ये नहीं होता कि हम इसकी बेस फॉर्म चेंज करने लगे हैं तो हम उसके आगे DED या IED ही लगाएंगे. इसका कोई भी और तरीका हो सकता है. जैसे समटाइम्स आप देखें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कट, उसकी हम तीनों फॉर्म्स जो हैं वो कट 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 ही लिखते हैं. ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम इसमें ये चीज ऐड करेंगे तो ये चेंज होगा. ओके ओके, अब जरा थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स एंड हाउ डू दे चेंज. रेगुलर वर्ब्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो वर्ड्स जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है चेंज करने के लिए, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. सो लेट्स सी कि हम इसको अगर हम ग्रुपिंग कर लें तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं. वी कैन चेंज द फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स बाय एडिंग डी, ED और IED. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कि ED हम किन के आगे ऐड कर रहे हैं, जैसे जंप, कॉल, लुक, टॉक, आंसर. ये मोस्टली वर्ड्स उनसे आपके कॉन्सोनेंट्स पे एंड हो रहे हैं, और इनके आगे हम ED ऐड करते हैं इनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए. जैसे जंप, jumped, call, CALLED, called, look, looked, talk, TALKED, talked, and answer, ANSWERED, answered. ठीक है, ओके. सेकंड जो हमारी कैटेगरी है उसमें हम सिर्फ डी ऐड करते हैं. यहाँ पे आपके पास वो वर्ड्स हैं मोस्टली जो कि एंड हो रहे हैं ई पर, डबल ई पर, और आपके वो वर्ड्स जो कि नॉर्मली एक्स वगैरह पे या SH वगैरह पे एंड होते हैं, उनके आगे भी हम ED ही ऐड करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे लाइक, यहाँ पे हमने सिर्फ डी ऐड किया, लाइक्ड, अग्री, अग्रीड, डाई, डाइड, अनाउंस, अनाउंस्ड, एडमायर, एडमायर्ड. ओके जी. नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है, here we add IED. IED हम यूजुअली उन वर्ड्स के एंड में ऐड करते हैं जो कि Y पे एंड होते हैं, और
जब हम इनकी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम y को एंड से रिमूव कर देते हैं और इन द प्लेस ऑफ y वी यूज टू राइट IED, ठीक है। जैसे क्राई में CRIED क्राइड, स्टडी में STUDIED, मैरी मैरिड MARRIED, फ्राई फ्राइड, ड्राई एंड ड्राइड। ओके, चलिए ठीक, नेक्स्ट इज आर इरेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स को हमने डिस्कस किया, अब हमारा इरेगुलर वर्ब है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। इनकी फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ग्रुप 1 जिसमें सारी फॉर्म्स जो सी हैं वो सेम होती हैं। फर्स्ट फॉर्म आपकी जो रूट फॉर्म है वो भी, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी। फॉर एग्जांपल कट, इसकी पास्ट फॉर्म भी कट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कट है। ओके, ग्रुप 2 में सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, यानी इसकी जो रूट वर्ड है वो चेंज होता है, जैसे बाय, लेकिन पास्ट टेंस में बॉट और पास्ट पार्टिसिपल में भी ये बॉट होता है। ठीक है, ग्रुप 3 में सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कम, अब इसकी पास्ट फॉर्म केम है और पास्ट पार्टिसिपल जो सी है वो अगेन जाके कम है, यानी आपकी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी होती है। ठीक है, ग्रुप 4 में आप आइए, इसमें आपकी तीनों फॉर्म्स जो सी हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, यानी आपकी बेस वर्ड भी डिफरेंट है, पास्ट फॉर्म भी डिफरेंट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी डिफरेंट है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक। ओके, फाइन। अब हम इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ग्रुप 1 में हमारे पास सारी फॉर्म्स सेम हैं, सेट सेट सेट, कट कट कट, put, put and put, hit, hit and hit, let and let. ग्रुप 2 जिसमें आपके पास पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, दैट इज बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, dig, dug, dug, feel, felt, felt, make, made, made. जी, ग्रुप 3 बेस एंड थर्ड फॉर्म आर द सेम, like come, came, come, run, ran, run, become, became and become. Fine. Okay, now come to group 4 जिसमें all three forms जो सी हैं वो एक दूसरे से different होती हैं, like break, broke, broken, blow, blew, blown, choose, chose, chosen, give, gave, given, go, went, gone. Okay, now come to the activities. What you have to do, that you have to write the forms of verbs. Here I have made 1, 2, 3, 4 and 5 columns. In column 1, I have written the present or base form of the verbs. You have to add simple present form, past participle form and present participle form. Okay, first one I have done for you. बोरो, इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो सी है, अगर आप सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं तो आप इसमें एस ऐड करेंगे। ओके, इट विल बिकम बोरोज। पास्ट फॉर्म में ईडी ऐड किया आपने, बोरोड बन गया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में अगेन इट इज बोरोड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ये बोरोइंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो रेगुलर वर्ब में हमने ऊपर लिखा हुआ है ना एड ईडी, तो ये ईडी आपने सिर्फ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ऐड करना है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका रूल डिफरेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट में जैसे आप सिर्फ एस ऐड कर रहे हो बोरोज, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप आईएनजी ऐड कर रहे हैं बोरोइंग। ठीक है, द सेकंड वर्ड इज कूल, so simple present will be cools, past will be cooled, past participle cooled and present participle cooling. The next word is grill, grills, grilled, grilled and grilling. Melt, melts, melted, melted and melting. Okay, the last word is peel. Simple present is peels, past is peeled, past participle is also peeled and present participle is peeling.
Okay, here comes the words in which you have to add d in past and past participle form. ये वो words हैं जिनकी आपने past और past participle form में d add करना है, लेकिन simple present में s या es और present participle में सिर्फ ing. ठीक है, जैसे hate, hates, hates. Okay, then hated, 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 and present participle में hating. Okay. Similarly, manage, manages, managed, managed, and managing. Shake, shakes, shaked, shaked, and shaking. Cure, simple present में cures, past में cured, past participle में cured, and present participle में curing. Giggle, simple present में giggles, past में giggled, past participle में giggled and present participle में giggling. Okay? जी, here are the words जहाँ पे आपने past और past participle में IED ऐड करना है y को हटा के. ठीक है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में आपका रूल क्या होगा, आपने IES ऐड करना है. जैसे फ्राई का FRIES फ्राइज, फिर पास्ट में FRIED फ्राइड, पास्ट पार्टिसिपल में FRIED फ्राइड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में FRYING. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देखें y वहीं पे लगेगा, लेकिन आगे आपने सिर्फ ING ऐड किया है. ठीक है, सो फ्राई, फ्राइज, फ्राइड, फ्राइड एंड फ्राइंग. Same rule will be applied to the remaining words. ठीक है, यही तरीका आपने बाकी words के साथ भी करना है. Dry, dries, dried, dried, and drying. Study, studies, studied, studied, and studying. Marry, marries, married, married, and marrying. Cry, cries, cried, cried, and crying. Okay. So let's come to the irregular verbs. ठीक है, irregular verbs में हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, जिसमें सेम फॉर्म्स हैं. आपकी बेस फॉर्म भी सेम है, प्रेजेंट फॉर्म भी सेम है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी, ठीक, सॉरी, बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सारी सेम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप जब इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म करेंगे तो उसमें s ऐड करेंगे, लाइक कट, कट्स, देन कट, कट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका जो कॉन्सोनेंट है t वो डबल हो जाएगा, CUTTING, कटिंग. सिमिलरली पुट, puts, put and PUTTING, putting. HURT, hurt, HURTS, hurts, hurt, hurt, and hurting. Shut, shuts, shut, shut, and shutting. Cost, costs, cost, cost, and costing. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, अगली हमारे हैं वो वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है. ठीक है, लेकिन इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट में s या es ऐड करते हैं, लाइक बाय, BUYS, buys. Past form is bought, past participle is BOUGHT, bought, and present participle is BUYING, buying. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट आपका वर्ड बीच में आ गया है गेट, गेट. ओके, सिंपल प्रेजेंट में गेट्स, फिर उसके बाद आपका गॉट, पास्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल में भी गॉट आएगा, और जब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो टी आपका जो सा है वो डबल हो जाएगा. ठीक है, GETTING, गेटिंग. पे, pays, paid, 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 and PAYING, paying. Leave, leaves, LEAVES, leaves इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है. पास्ट फॉर्म लेफ्ट, LEFT, पास्ट पार्टिसिपल भी लेफ्ट है, और LEAVING, लीविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई आपकी. ठीक है, सेल, सिंपल प्रेजेंट में सेल्स आ जाएगा, पास्ट में सोल्ड, SOLD, पास्ट पार्टिसिपल में अगेन SOLD, सोल्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में SELLING, सेलिंग आ गया. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास है बेस और पास्ट पार्टिसिपल जिन वर्ड्स के सेम होते हैं. ठीक है, जैसे रन, इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म रन्स आएगी, पास्ट फॉर्म रैन आएगी,
पास्ट पार्टिसिपल अगेन रन आएगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप इसका कॉन्सोनेंट एन जो है उसको डबल करेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. सो हियर कम्स द नेक्स्ट वर्ड्स, बिकम. सिंपल प्रेजेंट में becomes आएगा, पास्ट में became, पास्ट पार्टिसिपल में अगेन become आएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में BECOMING, becoming. Similarly, come, comes, came, come, and COMING, coming. Fine. जी. The next category is all the forms are different, जिसमें आपकी past form, past participle form और root form सारी एक दूसरे से different है. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास पहला word है BITE, bite. Simple present में BITES, bites. उसके बाद आपकी जो इसकी past form है bite की, वो आपकी आ जाएगी G. We were doing the word bite. So simple present is bites, past will be bit, past participle will be BITTEN, bitten, and present participle will be biting. Okay. The next word is break. Simple present में हम इसके आगे s add कर देंगे. Breaks. Past में broke, BROKE. Past participle में BROKEN, broken, और present participle में BREAKING, breaking. अगला word है draw. Simple present में draws आ जाएगा. Past में drew, 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 और past participle में DRAWN, drawn, and present participle में drawing, DRAWING. जी. Next word is ring. Simple present में rings, past में RANG, rang, past participle में RUNG, rung, और present participle में ringing. The next word is see. Simple present में sees आ जाएगा, SEES. Past में saw, SAW. Past participle में SEEN, seen, और present participle में seeing, SEEING. Okay. Okay, here comes the story time. ठीक है, अब आपका story time है ये. The story is about a foolish stag. So the story is, once stag was drinking water at a pond. He saw his reflection in the clear water. What is the reflection? जब आप मिरर देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है ना, शक्ल. इसी तरह जब वाटर बहुत क्लियर होता है तो उसमें भी आप देखो तो आपको अपना रिफ्लेक्शन, अपना व्यू, इमेज जो है वो नजर आ रहा होगा. ठीक है. He admired his beautiful horns. He thought them a gift of God for him. When he saw his thin and lean legs, he hated them. All of a sudden, some hounds appeared there. Hounds क्या होते हैं? The dogs which are used for hunting. ठीक है, जो शिकार के लिए कुत्ते होते हैं, they are called hounds. ठीक है. They were coming towards him. His thin legs helped him to run away from the hounds. He entered in a thick jungle. His beautiful horns were caught in bushes. He tried to set himself free, but in vain. The hounds reached the spot and tore him into pieces. So what is the moral of the story? That all that glitters is not gold. वो hounds जिनको stag बहुत beautiful समझता था, वो बुश में जो सा है वो ट्रैप हो गए और उसकी वजह से वो पकड़ा गया. यानी हर वो चीज जो कि आपको बहुत प्यारी लगती है हमेशा आपके लिए अच्छी नहीं होती. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू कि आपने ये सारा काम जो सा है अपनी ग्रामर की कॉपीज पे करना है. ठीक है. और अपनी कॉपीज को सैटरडे 15 अगस्त तक आपने स्कूल में सबमिट करवाना है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.